السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفراتہ و شفاتہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ آپ کے سامنے اسلام ایک وارث لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ پارہ نمبر 2 اور سورہ البقرہ کی 26ویں رکوع کا تلاوت کریں گے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے اس رکوع میں کیا پیغام دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینۃ، بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے اور بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخِرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی اور مسلمانوں سے ہنستے ہیں، اور ڈر والے ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور خدا جسے چاہے بے حساب دے۔ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، لوگ ایک دین پہ تھے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے، خوشخبری دی اور ڈر سنائے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور کتاب میں اختلاف انہی نے ڈالا جن کو دی گئی بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے۔ فَأَخَذَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، آپس میں سرکشی سے تو اللہ نے ایمان والوں کو حق بات سجھا دی جس میں جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اللہ جسے چاہے صراط مستقیم پہ چلائے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سی روداد نہ آئی۔ من قبلکم مستهم الباساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، پہنچی انہیں سختی اور شدت اور ہلا ہلا ڈالے گئے یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے، کب آئے گی اللہ کی مدد۔ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں محتاجوں اور راہگیروں کے لیے ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، تم پر فرض ہو خدا کی راہ میں لڑنا اور تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور تمہارے حق میں بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب تفسیر کے بارے میں دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دی ہیں۔ توریت بنی اسرائیل کو کتاب کے طور پہ دیا گیا تھا، ان کے نبیوں پہ نازل ہوا تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد اس میں تحریف کر دیا ان لوگوں نے، اور اسی توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعت شریف تھے، ان کے اوصاف بیان کیے گئے تھے، ان کی صباحتیں بیان کی گئی تھی تاکہ
उसे पढ़ने वाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आए तो आसानी से उन्हें पहचान सके और आखिर ज़माने इमामुल अंबिया समझ के उनके हाथों पे बैत हो जाए। लेकिन रऊसाओं ने, अमीरों ने पैसा दे के उलमाओं से उसमें तहरीफ करा दी और जिसकी वजह से लोग गफलत में आ गए। अल्लाह अकबर अल्लाह। और जो अल्लाह की आई हुई नेमत को बदल दे तो बेशक अल्लाह का अज़ाब सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मेरे महबूब इनसे कह दो कि मेरी भेजी हुई किताब में, मेरी भेजी हुई नेमतों में ये रद्द बदल करेंगे, तहरीफ करेंगे तो इनके लिए सख्त अज़ाब है। काफिरों की निगाह में दुनिया की जिंदगी आरास्ता की गई। काफिरों को लगता है कि दुनियावी जिंदगी में जो हम अमीरी देख रहे हैं, लोगों को गुलाम बना के रख रहे हैं और उन पे जो जुल्म इस्तबलाल कर रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो ये दुनिया की आरास्तगी हमारे लिए सब कुछ है और वो मुसलमानों पे हंसते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और इसके बारे में तफसीर देखेंगे कि 402 की तफसीर देखेंगे। वो इस कदर करते और इसी पर मरते। और आगे देखें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात व सिफात और खुसूसियत की नबूवत रिसालत का बयान, यहूदी और नसारा की तहरीफें और उसकी नेमत की तब्दील थी और वो उसी कदर करते और उसी पे मरते और सामान्य दुनिया से उनके गैबी देखकर उनकी तहकीर करते, जैसा कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद व अम्मार बिन यासिर और हबीब व बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देखकर कुफार मजाक उड़ाया करते थे, तमश्शुर किया करते थे और दौलत दुनिया के गुरूर में अपने आप को ऊंचा समझा करते थे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसके बाद यानी ईमानदार और रोज़ क़यामत जन्नत आलिया में होंगे और मगरूर कुफार जहन्नम में ज़लील ख़ार होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक सब लोग एक ही दीन पे थे, कोई दूसरा दीन नहीं था। सारे नबी का एक ही दीन था, एक ही शरीयत थी, एक ही कानून था। अल्लाह अकबर। लेकिन उनके बाद से नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया और उसके बाद वो थक गए और बारगाह अज़ली में दुआ किया तो लोगों पे अल्लाह तबारक व तआला ने लानत बरसा दी। अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बना के उनके बीच मबूस फरमाया। ईमानदारों और फरमाबरदारों को सवाब है। अल्लाह अकबर। ये मदराक और खाजिन किताब में भी लिखा है। काफिरों और नाफरमाबरदारों को अजाब, सख्त अजाब है, ये भी खाजिन में लिखा हुआ है। जैसा कि हजरत आदम और सीस और इदरीस अलैहिस्सलाम पर सहीफे आए और हजरत मूसा पे तौरेत, हजरत दाऊद पे ज़बूर और ईसा पे इंजील और खातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कलाम पाक, ये इख्तिलाफ तब्दील व तहरीफ व ईमान कुफ्र के साथ था, जैसा कि यहूदी और नसारे में वाक़ई है। यहूदी और नसारा ने अपनी किताबों में तहरीफ किया ताकि लोग रसूलुल्लाह के दीन की तरफ राग़िब न हो जाएं। अल्लाह अकबर। यानी इख्तिलाफ नादानी नहीं था बल्कि सोच समझ के किया गया था। अल्लाह। अब यह कि क्या ये गुमान करते हैं कि जन्नत में चले जाएंगे, तो इनसे कह दो कि इनके लिए सख्त अजाब है। और आगे हम देखेंगे कि कहा कि जब क्या इस गुमान में हो कि जन्नत में चले जाओगे, अभी तो पर अगलों की सी रोदात ना आई, पहुंची उन्हें सख्ती और शिद्दत और हिला हिला डाले गए कि कह उठा रसूल। ये जो आयत है इसकी तफसीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन इस्लाम की दावत दी तो ग़ज़वा-ए अहज़ाब हुआ, एक जंग हुई जिसे ग़ज़वा-ए अहज़ाब के नाम से जाना जाता है और उसी के मुताल्लिक़ ये आयत है कि मुसलमानों को सर्दी और धूप वगैरह की सख्त तकलीफें उसमें सहनी पड़ी थी और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की तलकीन की और बताया कि राह खुदा में तकलीफ बर्दाश्त करना ये कदीम बात है, बहुत पुरानी बात है। जो खास अल्लाह के बंदे होते हैं ये उनका मामूल रहा है। अभी तो तुम्हें पहले वालों की सख्ती तकलीफें आपने जानी ही नहीं है। बुखारी शरीफ में है कि हजरत जनाब बिन अरद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साए काबा में अपनी चादर मुबारक अपने सिरहाने रख के आराम फरमा रहे थे तो इन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआ क्यों नहीं फरमाते, हमारी क्यों मदद नहीं करते। फरमाया, तुमसे पहले लोग गिरफ्तार किए गए थे, जमीन में गड्ढा खोद के इसमें दबाए जाते थे,
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ज़ाहिरी ज़ुहूर, अजल से आपका ज़ुहूर है, जब कुछ भी नहीं था तो आप थे, पंजतन का नूर था, लेकिन ज़ाहिरी ज़ुहूर में आखिरुज़्ज़मा बन के जब आप इस दुनिया में आए तो ज़माने जाहिलियत में लड़कियां पैदा होती थी तो गड्ढा खोल के गाड़ दिया जाता था, अल्लाहु अकबर। और अमीर गरीबों का आका अपने आप को समझते थे और गुलामों को अपने पैरों तले कुचलते रहते थे, और उसके बाद से गड्ढा खोल के इसमें दबा दिए जाते थे, आरे से चीर कर दो टुकड़े कर दिए जाते थे। ये जो आरे से चीर कर दो टुकड़े कर देना और गड्ढा खोद के दफना देना, इसमें ज़करिया अलैहिस्सलाम को पेड़ के दरमियान आरे से चीरा गया था और यहया अलैहिस्सलाम को दबा दिया गया था, अल्लाह अकबर। उनके दो टुकड़े कर डाले गए थे और लोहे के कंघियों से उनके गोश्त नोचे गए थे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पहले नबियों ने इतनी मुशक्कतें सही थी दीन के लिए, अल्लाह अकबर, और इनमें कोई मुसीबत तो उन्हें उनके दीन से रोक ना सकती थी। इतनी बड़ी मुसीबतों के बावजूद भी वो दीन से नहीं रुके और इतनी शिद्दत पहुंचने के बावजूद भी उन्होंने अपने दीन को नहीं छोड़ा, बल्कि वो उस पे कायम रहे, अल्लाह अकबर। उसके आगे है कि उन लोगों ने पूछा कि आपके राह में क्या खर्च करें, तो इस आयत के बारे में है कि ये आयत उमर जमूह के जवाब में नाजिल हुई थी, जो बूढ़े शख्स थे और बड़े मालदार थे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या खर्च करें और किस पर खर्च करें। इस आयत में उन्हें बताया गया कि जिस किस्म का और जिस कदर माले कलील या कसीर खर्च करो, इसमें सवाब है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और कहा कि तुम अपने बाल बच्चों को खिलाने के बाद से जो भी पैसा बचता है उसे राह खुदा में और दीन मुहम्मदी को फरोग देने के लिए तुम खर्च कर सकते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला से जब उन्होंने पूछा क्या खर्च करें, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि तुम फरमाओ जो कुछ माल नेकी में खर्च करो और वह माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों, यतीमों, मोहताजों और राहगीर के लिए है, और जो भलाई करो बेशक अल्लाह जानता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि अपने अहलो अयाल का खर्च पूरा करने के बाद से जो भी बचेगा और दीन खुदा, दीन मुहम्मदी राह हक में तुम खर्च कर सकते हो। तुम पर फर्ज हुआ कि खुदा की राह में लड़ना वो तुम्हें नागवार है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा के थक गए थे और काफिरों ने जुल्म की हदें पार कर दी थी। बिलाल हबशी रहमतुल्लाह अलैह और ऐसे बहुत सारे गुलामों को, गुलाम ज़ैद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक जो थे, उन लोगों को तपती रेत में पत्थरों से बांध के उन पे कोड़े बरसाए जा रहे थे और जुल्म की हद हो गई थी। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मान नहीं रहे हैं, बार बार जंग की दावत दे रहे हैं, तो लाइए हम जंग कबूल करते हैं। जंग करने के लिए तलवारों की जरूरत थी, खाने की जरूरत थी, जरा बख्तर की जरूरत थी, इसलिए पैसों की भी गरज थी। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हारे बाल बच्चों से जो पैसा बचे उसे राह हक में खर्च कर सकते हो। बेशक अल्लाह बेहतर जानने वाला है और करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और तुम्हारे हक में बेहतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं, मगर अल्लाह बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अपने असहाबे कराम को समझाया कि अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे हक में क्या बेहतर है और क्या नहीं बेहतर है, इसीलिए हमें तवक्कल अल्लाह पे ठहर जाना चाहिए और जो हुक्म रबी मुझ तक उतरता है मैं तुम तक पहुंचाता रहूंगा और तुम उसमें गामजन रहो और पहले वार ना करो। लेकिन जब वो लोग काफिर जंग में उतारू हो जाए, वार करना शुरू कर दें, जुल्म की हदें पार कर दें, तो जवाब देना भी जरूरी है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या वारिस अल्लाह वारिस।